Good morning, dear friends. Once again, welcome to our English Fred. And in previous Fred, dear friends, we were talking about Unit 15, an adventurous journey across the savannah. So हम यूनिट नंबर 15 देख रहे थे दोस्तों, an adventurous journey across the savannah, and we have seen in the previous period that how we have talked about the introduction of the savannah, and then how our story takes place in African savannah when it was very hot and it started suddenly the cloud started bursting, and it was lightning and thundering, and each and every birds and living creatures used to gather under the acacia tree. Okay, and there were the main characters we have seen. जो main characters थे जिनका इंट्रोडक्शन हुआ है इस लेसन में, स्टोरी में, गावरा द जिराफ एंड दीना द crane. Okay, so now open page number 156 of your English textbook and let's start. Okay, so in the picture you can see here the crane and the giraffe, Gavra and Dina is this crane. All right, now on page number 156, let's start. So the heavy dark clouds were fused with forked spikes of lightning and claps of thunder made the animals stare up at the skies in fear. और जो हेवी डार्क क्लाउड्स थे, बहुत घने बादल थे. ओके, एंड जब उन्होंने देखा, फियर्स कट इट्स वे, सो क्लाउड्स वर कटिंग इट्स वे एंड लॉन्ग पॉइंटेड फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग. ओके, और जिस प्रकार से वो जो लाइटनिंग थी, बिजली थी, वो उन बादलों को काट रही थी और उससे एक डर का माहौल बना था एनिमल्स में. थंडर मेड द एनिमल्स स्टेयर अप एट द स्काईज इन फियर. सभी एनिमल्स स्काई को, आसमान को देख रहे थे डर के कारण. The acacias were soon full of all manner of colorful parrots that squawked noisily. Several other birds sat there looking quite sorry for themselves, rubbing their beaks against their wet and bedraggled feathers. बहुत सारे, मतलब थोड़ी समय में वो जो हमारा एशिया का पेड़ था, उसके सभी प्रकार के कलरफुल पैरोट्स वहां पर आकर बैठ चुके थे टू टेक शेल्टर. सेवरल अदर बर्ड्स सैट देयर लुकिंग क्वाइट सॉरी फॉर देमसेल्फ. बहुत दूसरे भी बर्ड्स थे जो अपने आप को, उनको बड़े खुद पर दया आ रही थी. रबिंग देयर बीक्स अगेंस्ट देयर वेट एंड बेड्रैगल्ड फीदर्स. ओके, बेड्रैगल्ड मींस वेट अंटिल द फीदर्स ऑफ द बर्ड्स. तो वो उनको देख रहे थे, अपने चोंच को वो रगड़ रहे थे. स्पेशली नॉइजी वर टू मंकीज दैट चैटेड कॉन्स्टेंटली इन स्पाइट ऑफ द रेन एंड द थंडर. लेकिन इन सब एनिमल्स में दो ऐसे नटखट बंदर थे, मंकीज थे, जो बहुत ज्यादा बातें करते थे कॉन्स्टेंटली, मतलब कंटिन्यू. जब से वो आए थे कंटिन्यू, वो दे कुड नॉट सिट properly on that tray and they were moving here and there, though it was very much heavily rain and thunder. Jumbo friend, said one of them, I'm a mammo and this is my brother Melis. We love swinging on these vines but don't like this rain and thunder. If the rain doesn't stop, the whole of the savannah will soon be flooded. So उन दोनों बंदरों में से, मंकीज में से एक मंकीज कहता है, हेलो फ्रेंड्स, आई एम मैमो. वो मैमो होता है, एंड दिस इज माय ब्रदर मेलिस. मेलिस एंड मैमो आर दी two monkeys. We love swinging on these vines but don't like this rain and thunder. Who said? The mammo said, if the rain doesn't stop, the whole of the savannah will soon be flooded. अगर बारिश जल्दी ही रुकी नहीं तो पूरा सवाना डूब जाएगा. Okay, flooded, what are you talking about? Said Gavra, an astonished look in his eyes. Flooded, डूब जाएगा, पानी से भर जाएगा, क्या बात कर रहे हो तुम? गावरा एकदम सरप्राइज होकर, उसके आंखों में सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर वो कह रहा था. माय ब्रदर एंड आई ऑलमोस्ट ड्राउन. मैं और मेरा भाई ऑलमोस्ट डूब रहे थे. सेड मेली स्विंगिंग ऑन ए वाइन एंड ऑलमोस्ट हिटिंग गावरा's head. गावरा के हेड को टच करते, मारते हुए वो बता रहा था कि मैं और मेरा भाई ऑलमोस्ट डूब ही रहे थे. केयरफुल, सेड गावरा, टेल मी अबाउट दिस फ्लड. व्हेन आई सॉ द रिवर बेड इट वाज ऑलमोस्ट ड्राई. ओ, ध्यान से, मुझे डोंट हिट मी. ओके, हाँ, और तुम क्या कह रहे थे? व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट द फ्लड? टेल मी अबाउट दिस फ्लड. व्हेन आई सॉ द रिवर बेड इट वाज ऑलमोस्ट ड्राई. लेकिन मैंने जब रिवर को देखा तो नदी तो पूरी खाली थी, है ना. सो देन it is a roaring flood of water now flowing as swiftly as a waterfall. Many animals have been swept away. 1 minute it was dry and at the next moment it appeared like a flash of lightning and took everything along with it.
chattered Memo, excitedly jumping from the vine he was swinging onto the branch on which Dina was sitting, almost knocking her over. Okay, so जब गावरा ने कहा कि मैंने तो कुछ ऐसा देखा नहीं, when I saw the river bed, नदी का पात्र देखा, so उसमें तो कुछ भी पानी नहीं था, पूरी नदी ड्राई थी. तो मैमोस कहता है कि इट इज रोरिंग फ्लड ऑफ वाटर नाउ. अब जो पानी है वो तेज बह रहा है, फ्लोइंग एज स्विफ्टली एज वाटरफॉल, और इतने फास्ट बह रहा है जैसे कि वाटरफॉल का पानी हो, झरने का पानी हो. मेनी एनिमल्स हैव बीन स्विफ्ट अवे, और बहुत सारे एनिमल वहां पर डूबकर बह गए. ऑन मिनट इट वाज ड्राई, एक ही समय में वो ड्राई थी, और दूसरे अगले क्षण में, अगले ही पल में वो पूरी जैसे कि कोई लाइटनिंग की फ्लैश हो, चमक हो, अचानक जादुई आश्चर्यचकित तरीके से, आश्चर्यकारक तरीके से वहां पर बाढ़ आ गई. एंड टुक एवरीथिंग अलोंग विद इट, और सब अपने साथ बहा के लेके चली गई. चैटेड मैमो एक्साइटिंगली जंपिंग फ्रॉम द वाइन ही वाज स्विंगिंग ऑन टू द ब्रांच, और इस प्रकार से एक्साइटेडली वो मैमो बातें बताने लगा सभी एनिमल्स को, और वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर उस वाइन्स की, एशिया वाइन्स की कूद रहा था. इट्स गेटिंग वेरी क्राउडेड ओवर हियर, मटर्ड डीना एज शी स्टेप्ड साइडवेज अलोंग द ब्रांच. और जैसे ही इस मैमो ने उसके सर पर कुछ टच किया दीना के, तो दीना कहने लगी इट्स गेटिंग वेरी क्राउडेड ओवर हियर, यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्ड्स और एनिमल्स हो गए, बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है. मटर्ड डीना एज शी स्टेप्ड साइडवेज अलोंग द ब्रांच, और वो सरकने लगी. दैट नाइट द रेन डिडंट लेट अप एंड द नंबर ऑफ द एनिमल्स ग्रीव, और उस दिन, उस रात कोई बारिश रुकी नहीं, और वहां पर उस पेड़ के नीचे और पेड़ पर आने वाले एनिमल्स और बर्ड्स की संख्या बढ़ने लगी. दे हडल्ड टुगेदर थिंकिंग अबाउट द फ्लड मैमो एंड मेलिस हैड बीन टॉकिंग अबाउट, और वे सभी एनिमल, ऑल द बर्ड्स and the animals sat close together due to fear and the cold, and they were all, everybody was thinking about the flood which were told by Memo and Melis. Okay, it wasn't a very pleasant thought. और जब उनके मन में ये बारिश का और फ्लड का थॉट आ रहा था, विचार आ रहा था, तो उन्हें काफी डर लग रहा था. ये ख्याल बिल्कुल बहुत ही बुरा था. Then let's see on the page number 157, friends. Then what happened? देर रात तक, till the whole night they lived on the acacia trees and under the acacia trees. And then what happened? The next dawn come. Okay, नई सुबह आई. The next morning the sky brightened and the heavy rain changed to a drizzle and then stopped. Okay, अगले दिन फिर sky brightened, चमका, and the heavy rain changed to a drizzle, and तो फिर जो तेज बारिश थी वो थोड़ी स्लो होने लगी, एंड देन स्टॉप, और बाद में रुके. द वाटर वॉज सून सोक्ड अप बाय द थर्स्टी अर्थ, और जो बह रहा था, बारिश का पानी जो बह रहा था पूरी धरती पर, थोड़ी देर में पूरे पानी को एब्सॉर्ब कर लिया गया है, थर्स्टी अर्थ, बिकॉज ड्यू टू हॉट समर द अर्थ वॉज वेरी थर्स्टी, और पूरा पानी को सोख लिया. वेरी इनटू द ड्राई अर्थ द डस्टी लीव्स शोन, बर्ड्स ओपन देयर पेटल्स एंड फ्लावर्स फिल द एयर विद देयर फ्रेग्रेंस. द डस्टी लीव्स शोन, जो भी पत्ते थे, पेड़ के पत्ते थे, जो भी फूल वगैरह थे, उनकी पेटल्स, डस्टी लीव्स एकदम शाइनिंग होने लगी, क्योंकि उनकी जो डस्ट थी वो पूरी निकल गई. बर्ड्स ओपन देयर पेटल्स एंड फ्लावर्स फिल द एयर विद देयर फ्रेग्रेंस, बहुत सारे नए फ्लावर्स ने पूरे आसमान को और पूरे एटमॉस्फेयर को अपने फ्रेग्रेंस से, अपने स्मेल से, अच्छे स्मेल से भर दिया था. ग्रीन शूट्स पोक देयर ईगर हेड्स आउट ऑफ द सॉइल, और नए जो सीड्स थी उनमें से नए शूट्स, पौधे बाहर, जमीन की बाहर निकलने लगे. What a beautiful morning, said Dina. The rain has stopped, the sun is shining, and we are dry. Wow! He was very excitedly. He said, "What a beautiful morning." This is an exclamatory sentence. Okay, said Dina ने कहा, the rain has stopped, बारिश रुक चुकी है, the sun is shining and we are dry. Look, our friends are going home as well. और देखो, हमारे सब बर्ड्स और एनिमल जो यहाँ पर रात हमारे साथ में गुजारे, they all are going home. Some of them have started to dig now burrows for themselves. और कुछ एनिमल्स और कुछ बर्ड्स ऐसे भी थे जिन्होंने अपने लिए burrows खोदने भी चालू कर दिए थे. जो एनिमल, स्मॉल क्रिएचर जो जमीन के अंदर रहते थे, उन्होंने तो काम भी चालू कर दिया था अपने मकानों का. जस्ट लुक एट द फ्रॉग्स, दे लव द फडल्स. देखिए उन फ्रॉग्स की तरफ देखिए, उनको तो पानी में फडल्स
अच्छे लगते हैं। सी दो सिली मंकीज, लुक एट दो सिली monkeys, they are very naughty. I didn't know monkeys enjoy splashing in pools. मुझे पता नहीं है कि कभी monkeys भी पानी में या पानी में मजा लेते हैं। said Gavra. Look, the dust had hidden the mountain. Now the sky is so clear that we can actually see the snow-capped peaks. ओके सेठ दीना, और दीना तभी कहता है कि देखो देखो देखो, द डस्ट हैड हिडन द माउंटेन, इस डस्ट ने पूरे माउंटेन को ऑलमोस्ट छुपा दिया है। नाउ द स्काई सो क्लियर दैट वी कैन एक्चुअली सी द स्नो कैप्ड पीक्स। देखिए अब क्योंकि ये स्काई, बादल हट चुके हैं और स्काई इतना क्लियर है, आसमान इतना साफ है कि हम उस माउंटेन पीक को आसानी से देख सकते हैं। दैट इट इज स्नो कैप्ड, मतलब उसने स्नो की कैप पहनी हुई है। It really, said Dina, all this is said by the Dina, it really looks magnificent, very super wonderful. Okay, the meaning of magnificent is extraordinary, super wonderful. It really looks magnificent. I know we could walk to the mountain. मुझे पता है कि हम माउंटेन तक जा सकते हैं। I have heard that it is really beautiful there. और मैंने सुना है कि उस माउंटेन के पास में बहुत ही सुंदर जगह है। A paradise on earth, जैसे कि धरती पर स्वर्ग हो। The umbrella shaped trees have large leaves, colorful flowers grow at the foot of the mountain. The tasty fruits are huge and the clear bubbling sparkling streams of water are calling us. Let's go, Gavra. Okay. So दीना कहता है कि उस माउंटेन की जगह को मैं जानता हूं और हम वहां पर चलकर जा सकते हैं, बिकॉज आई हैव हर्ड दैट दिस इज अ वेरी वंडरफुल एंड एक्साइटिंग प्लेस, अ पैराडाइज ऑन अर्थ। द अम्ब्रेला शेप्ड ट्रीज हैव लार्ज लीव्स, वहां पे जो अम्ब्रेला शेप्ड की ट्रीज होती है, जो उनकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, कलरफुल फ्लावर्स आर ग्रोइंग देयर एंड एट द फुट ऑफ द माउंटेन, मतलब उस माउंटेन के नीचे में। ओके, द टेस्टी फ्रूट्स आर ह्यूज, वहां पर बहुत सारे लॉट ऑफ टेस्टी फ्रूट्स आर इन प्लेंटी। ओके, द क्लियर बबलिंग स्पार्कलिंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर आर कॉलिंग अस, और वहां पर बहुत ही अच्छा एक वाटरफॉल है, और वो जो स्ट्रीम है वाटर स्ट्रीम, दैट ऑल ईच एंड एवरीथिंग इज वेटिंग फॉर अस just near the mountain. So let's go to the mountain. So he said, let's go, Gavra, let's go to the mountain. The mountain is calling for us, calling us, so let's move. And then इसकी दीना की इस बातों पर सभी एनिमल्स आश्चर्यचकित हो जाते थे, सरप्राइज होते, एंड दे थॉट दैट कि काश हम भी वहां पर जाते। सो प्लीज टेक अस विथ यू, शाउटेड मेमो एंड मेलिस टुगेदर। मेमो और मेलिस जो ये मंकीज थे, दोनों भाई थे, वो कहते हैं कि कृपया हमें भी अपने साथ लेके चलो। वी कैन स्विंग अराउंड ऑन द टॉल ट्रीज एंड ईट एज मच ऑफ द डिलीशियस फ्रूट एज वी वांट। हम भी वहां पर पेड़ों पर झूलेंगे और जितने फ्रूट्स है, डिलीशियस स्वादिष्ट फ्रूट जितने खाने मन भर खाएंगे। ओ दीना डिडंट लुक टू प्लीज, लेकिन उनकी बात सुनकर दीना को बिल्कुल खुशी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था, दीना को पता था कि दिस ऑल टू ब्रदर्स मैमो एंड मेलिस वर वेरी नॉटी। ऑल दैट स्विंगिंग अराउंड द मंकीज हैड बीन डूइंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म हैड मेड हर क्वाइट डिजी। ओके, व्हाई दीना वाज अनहैप्पी विद द these memos and melis monkeys? Because she was very much upset, because she was being troubled by these both monkeys, Memo and Melis, when they were on the acacia trees, okay, on the previous night. Melis looked at her and saw the disapproval. Melis ने उसकी तरफ देखा, दीना की तरफ देखा, तो उसे लगा कि दीना हमें पसंद नहीं कर रही है और हमें नहीं बोलेगी, आने नहीं देगी। ओ दीना प्लीज डोंट बी डिसप्लीज, और वो रिक्वेस्ट करता है दीना को कि ओ दीना प्लीज डोंट बी डिसप्लीज, डोंट बी अनहैप्पी विथ अस। वी हैव हर्ड दैट द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स नियर द माउंटेन आर फुल ऑफ फिश दैट ट्विंकल लाइक द प्रेशियस rubies and emeralds that came from the mines. ओके, सो वो कहता है कि दीना प्लीज हमें ले चलो अपने साथ, प्लीज डोंट बी अनहैप्पी विथ अस, वी आर वेरी मच सॉरी फॉर द बिहेवियर। वी हैव हर्ड दैट द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स नियर द माउंटेन आर फुल ऑफ फिश। हमने सुना है कि जो नदियां है और जो पानी के झरने हैं माउंटेन के पास में, वो फुल ऑफ फिश है। ओके, जो कि चमकती है, ट्विंकल लाइक प्रेशियस रुपीज, बहुत ही अनमोल मोतियों समान, रूबीज एंड एमराल्ड्स के समान, जो माइंस से निकलते हैं, खदान में से निकलते हैं, उनके जैसे वो फिशेस वहां पे चमकती है और हमें वहां पर आना है।
Oh, what about the long tasty bananas that grow there, brother? said Memo. So Memo कहता है, और ब्रदर क्या कहोगे वहां पर जो लंबे लंबे बड़े बड़े और टेस्टी टेस्टी बनानास होते हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? आई हैव हर्ड दैट सच बनानास कैन ओनली बी फाउंड नियर द माउंटेन. और मैंने तो सुना है कि ऐसी बड़ी बनानास सिर्फ माउंटेन के पास में ही होती है. एंड द वाटरफॉल्स दीना यू विल लव देम. और वाटरफॉल्स, ओ दीना तुम सच में तुम्हें बहुत खुशी होगी. Okay, the waters that rush down merrily shimmer and shine and sparkle like the stars in the night sky. said Miss. ओ दीना, और उस पानी में, उस स्ट्रीम वाटर में वाटरफॉल्स इतने सुपर है, इतने शाइनिंग है एंड ब्राइटनिंग है कि सब कुछ आप भूल जाओगे. द वाटरफॉल्स आर सो शिमर. शिमर मीन्स शेकिंग एंड शाइनिंग एंड इट्स स्पार्कल लाइक द स्टार्स इन द नाइट स्काई. रात में जिस प्रकार से तारे चमकते उस प्रकार से उनका पानी चमकता है. तो प्लीज, तो वो कहते हैं, दे रिक्वेस्टेड बोथ मेलिस एंड मेमोस कि ओ दीना प्लीज डोंट बी डिस्प्लीज विद अस, और हमें वहां पर माउंटेन तक लेके चलो. एंड देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? वेदर दीना एंड गाबरा go to the mountain, whether their request, Memos and Melis request was accepted by Dina, and whether all these animals and birds are heading towards the mountain or not, we will see in the next period. Till then, dear students, I hope you have understood this much amount of the story, and please learn well, read well at your home, and try to find out the difficult words meanings. Okay, this is very interesting story, so read well and learn well. We will see in the next period. Thank you.